Unacademy. Let's crack it. Good morning, sir. Very good morning. So let's start. Are you ready? So first of all, introduce yourself. Sir, my name is Pallavi Bharti. I did my LLB from Faculty of Law, Lucknow University, and currently I am pursuing my LLM from Campus Law Center, Delhi University. तो आपका लॉ ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ था? Sir, 2021. 2021 और उसके बाद आपका फोकस में यूपी एपीओ पर रहा है या किसी और एग्जाम की भी आप साथ साथ तैयारी करता है? Sir, I also give the mains exam of UP Judiciary. यूपी जुडिशरी एज वेल एज ओके. Yes, तो sir. यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ट्रायंगल नहीं है या सिमिलर है? Sorry, sir. यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी ये दोनों आपके लिए अलग अलग सिलेबस का पार्ट नहीं है या फिर सिमिलर सिलेबस कॉमन है दोनों के अंदर? Yes, sir. Apart from Police Act, syllabus are common. तो आप क्या जानते हैं यूपी एपीओ के बारे में? ये वैकेंसी किस चीज की है? क्या रोल होता है इसका सिस्टम में? सर बेसिकली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का क्रिमिनल केसेस में एक मेन रोल प्ले किया जाता है इन ओपनिंग ऑफ द केस एंड आल्सो prosecuting officer directed and cooperated the police officer during the investigation. And sir, from the government side, they presented the case. From government side या from Yes, victim sir. side? Sir, sorry, from victim side, and in criminal cases, it is considered that state is the victim. The main logic behind this concept? Sir, because whenever any crime has been committed, then definitely it committed against one person, but it creates the terror in whole of the people who belongs to that society. So for tackle with this situation, at the place that the main person play the victim role, state represented himself. You said as a that state is victim. तो फिर स्टेट एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कर सकता? जब स्टेट विक्टिम है तो स्टेट के पास एफआईआर लॉन्च करने का भी तो राइट होना चाहिए ना? सर बेसिकली जब भी ऑफेंस होता है तो जब एफआईआर इन क्रिमिनल मैटर्स में एक बार आपका लॉन्च हो जाता है उसके बाद एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ ऑफेंसेस कौन से हुए हैं एंड आफ्टर द इंक्वायरी एंड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जब आपका ट्रायल शुरू होता है तब बेसिकली मेन आपका स्टेट जो होता है वो रोल में आता है, तो वहां से स्टेट का रोल शुरू होता है. ट्रायल से पहले स्टेट का कोई रोल नहीं होता? सर एज अ पार्टी नहीं होता मेन उस समय पे, जैसे हम अगर जो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस या फिर जब हम देखते हैं कि कंप्लेंट या फिर एफआईआर जो भी लॉन्च करता है वो मेन विक्टिम जिसके साथ ऑफेंस हुआ रहता है वो करता है, ना कि स्टेट करती है. चलिए मैं आपको एक सिंपल सा सिचुएशन देता हूँ और आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि एक पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर रॉबरी कमिट हुआ है किसी पर्सन के साथ और उस पर्सन ने एफआईआर लॉन्च कर दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर, जो भी नजदीक का पुलिस स्टेशन था वहां उसने एफआईआर लॉन्च कर दी. अब एफआईआर लॉन्च करने के बाद में अब आप उस पर्टिकुलर कोर्ट की जो है आप क्या है वहां पर एपीओ है, ओके, यू आर द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर देयर, राइट? तो मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में पुलिस आपको अप्रोच कब करेगी? Okay, sir. Sir, in reference to filing of the FIR or in reference to the trial or till the judgment? Complete procedure from A to Z in case of FIR. FIR. Yes, sir. Sir, when any cognizable offence has been committed, then firstly, there is the lodging of the FIR.
and FIR has been lodged by the officer in charge of the police station. He stated it in writing and also take the signature of the person who make the FIR. And after it, the investigation has been conducted. And once the investigation get completed, a charge sheet has been filed under Section 173 clause 2, and after that the magistrate taking the cognizance on such under Section 190 B, and after then trial get started. And in trial, firstly the magistrate, after considering the whole of the thing, if found that there are not the sufficient ground for continuing the trial, then he discharged the accused person. And if he found that there are sufficient ground, then he firstly framed the charge and stated to the accused person, and after that asked the accused to make a plea of guilt or not. If accused person denied, then he just plead for the trial. Then a magistrate conduct the trial and ask for the prosecution firstly evidences. And once prosecution produces its all the witnesses, evidences, and examination and the other thing has been done, and court found in case of the session trial that the evidences are not sufficient in nature, then they acquit the accused at only after the prosecution evidence. And if court found that prosecution evidence are sufficient, then they ask for the evidences of the accused person. And after the examination of the accused person give also their evidences, and a memorandum of the association along with the other procedure has been followed, then an argument has been done. Then magistrate give the judgment either of the acquittal or of the conviction. And in case of conviction, there is the quantum of the sentence. One hearing has been made, and then finally sentence has been given. पल्लवी जी, ये बताइए कि ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में और प्रोसिक्यूटर में क्या डिफरेंस है दोनों में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में? Sir, I think there is the difference of the hierarchy, and also we can say that assistant prosecuting officer are not defined under the CRPC, but prosecuting officer are defined under Section 2 Clause U of the CRPC, and along with Section 25. तो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस कोर्ट में पैरवी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से? Sir, in district court, district and session court. मजिस्ट्रेट कोर्ट में? Sorry, sir. मजिस्ट्रेट कोर्ट में करते हैं? ओके सर. अच्छा, ये बताइए कि एक कोर्ट को एक प्रिजम्पशन करना है, उसके सामने सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है, तो एविडेंस एक्ट का कौन सा प्रोविजन कोर्ट को पावर देता है कि वो उसके बारे में प्रिजम्पशन कर सकता है? Unable to recall the exact section. Sorry, sir. अच्छा, किसी महिला के विरुद्ध किसी अपराध किया गया है और उसकी कंसेंट्स को लेके या उसके जो कैरेक्टर को लेके कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे एविडेंस एक्ट में, किस प्रोविजंस में किए गए थे वो? Yes, sir. One is the there is a section, I think it's 153, or in which it has been mentioned that in cross examination regarding the character of the victim who is victim of the sexual offences, it about the reputation, any question cannot be asked in contradiction. And also there is the amendment in Section 53 Clause A, that is the of character in which in reference to the consent वाला portion. अच्छा, सीआरपीसी के 193 में और 209 में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. Basically 193 of the CRPC provides about the committal when the cognizance has been taken by the CJM,
then he can transfer that case to the other magistrate which is subordinate to it, and section 209 provides about the committal of case to the court of session. ठीक है, आप ही बताइए कि जमानत कितने प्रकार की होती है? Sir, bail, basically bail in bailable cases and bail in non-bailable cases. दो प्रकार ये सी होती है। और डिफॉल्ट बेल क्या होती है? सर बेसिकली डिफॉल्ट बेल वो बेल होता है जिसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं कि लाइक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड a person get detained in a custody and that period get expired, then on expiry of that period, if the investigation has not been completed, then that person get a right of default bail. अच्छा, 65B एविडेंस एक्ट की एविडेंशियल वैल्यू पे कोई नया सुप्रीम कोर्ट का केस आया, उसका नाम बताएं। Sir, the last case which I recall is the Arjun Pandit Rao Khotkar, and thereafter there is a one case of 2023, but I am unable to recall that. Sorry, sir. ठीक है, ठीक है। Okay, Pallavi ji, we have done with your interview, and जो चीजें हमने आपके बारे में ऑब्जर्व की हैं, तो एक तो क्या है कि आप फटाफट बोलने के चक्कर में आपका सोचने का स्पीड और आपके बोलने का स्पीड मैच नहीं करता, और जब ये मैच नहीं करता ना तो ऐसे ऐसे जो साउंड है वो निकलने शुरू हो जाता है, क्योंकि हम पॉज लेना शुरू कर देते हैं, है ना। और पॉज क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा माइंड उस समय सोच रहा होता है, इसलिए भागो मत, ठीक है। एक बैलेंस प्रेजेंटेशन के साथ आपको आंसर डील करना चाहिए। ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का रोल होता है और उसके बाद पुलिस का रोल नहीं होता है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एपीओ इंटरफेयर नहीं करता है ना। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि पुलिस अप्रोच करेगी क्या, तो शायद आप इस बेसिक लॉजिक को कनेक्ट नहीं कर पाए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एपीओ इंटरफेयर आता ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं आता वहां तक। तो पुलिस एपीओ को फॉर्मली ऑफिशियली अप्रोच नहीं करती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपसे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप पूछा, तो ये तो चीज ऐसी होती जो हमारे एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे आप एक कॉग्निजेंस के बाद सीधे ट्रायल पे चले गए, तो उससे पहले इश्यू ऑफ प्रोसेस का रोल भी तो आएगा ना। इश्यू ऑफ प्रोसेस 204 to 210, वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल है जो रहता है वहां पर। साथ साथ आपको ट्रायल के प्री रिक्विजिट के अंदर चार्ज फ्रेमिंग का वर्डिंग भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि चार्ज फ्रेम किया और उसने प्लीड गिल्टी कर दिया तो क्या हम आगे एविडेंस के स्टेज पे जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे, है ना। तो इतना डिटेल आपको जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्टेप छोड़ने नहीं होते हैं। अब आपसे सर ने एक सवाल पूछा, कई बार क्या होता है हमें थोड़ा सा चीजों को अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो क्लियर करना पड़ता है। सर ने आपसे सवाल पूछा कि जमानत कितने तरह की होती है ना, और आपने डायरेक्टली वहां पर आंसर दे दिया कि सर 2 तरह की होती है, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। आपने ऐसा मतलब बात कह दिया, है ना। तो अब ये तो आप तो किसका बता रहे हो, ये जमानत के प्रकार बता रहे हो या ऑफेंस के प्रकार बता रहे हो कि सर ऑफेंस इट में भी बेलेबल और ऑफेंस में भी नॉन बेलेबल। तो यहाँ पर अगर आप जो भी जवाब दे रहे हो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट मिसिंग है, तो उस केस में कि सर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस पर्सपेक्टिव, then in case of bail, offense may be bailable offense and non-bailable offense as enumerated under section 436 and 437. ठीक है, तो वहां पर आपने अपनी तरफ से एक चीज एड ऑन कर दी, है ना। तो ऑफेंस को आपने क्लेरिफाई करते हुए बेल के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये वाला चीज तो मतलब वहां पे है ना, थोड़ा सा हमारा अगर लिसनिंग मोड रहे, एक्टिव रहे, और या फिर हम खुद अपनी तरफ से चीजों को एड ऑन कर पाए, तो आराम से देखो आपका यूपीएपीओ का इंटरव्यू बहुत ही काम डाउन तरीके से लिया जाएगा। आपको पैनिक होना ही नहीं है ना। हम यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज था और अभी भी है ना। बस जरूरत क्या है, हम उसको एकदम पीसफुली तरीके से सामने वाले के दिमाग में एंटर करवाने का। आराम से सुनो, भागो मत। भागोगे तो फिर आपका सोचने का स्पीड और बोलने का स्पीड मैच नहीं कर पाता है। ओके पल्लवी जी? यस सर। आराम से ऑब्जर्वेशन करो और इंटरव्यू से पहले खुद को मेडिटेट करके जाना। ठीक है, जब आप घर से रवाना हो रहे हो या होटल से रवाना हो रहे हो, तो आराम से 15-20 मिनट आंखें क्लोज करके एकदम खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड कर देना उस समय कि मैं अब इंटरव्यू के सामने बैठूं, ना मेरे को कोई फियर रखना है, और मेरा इंटरव्यू जैसा भी होगा अच्छा जाएगा, ये मुझे विश्वास है खुद के टैलेंट पे, खुद के हुनर पे और खुद की प्रिपरेशन पे। ओके, चल, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।